Hello everyone out there. Welcome to this channel and my name is Sana Shaukat Sheikh. And today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra board OCM chapter number 1, which is principle of management. Okay. So this is our first exercise of class 12 chapter 1 OCM. Okay, for class 12. So let us quickly come on page number 14, I guess. I suppose it is on page number 14. We have to come on our exercise section. Yeah, it is on 14. So we are on page number 14. Let us quickly begin. Okay, so now you have to pay attention and I will read out each and every question and you have to keep marking it in your textbook. Okay, so let us begin. Question number 1 is select the correct option and rewrite the sentence. So what we have to do is first we have to select the correct option, which one is the correct one, and then we have to rewrite the whole sentence again. Okay, so as you can see, I have highlighted here few things. Okay, so I will just dictate one time. Question number 1, first, Dash was regarded as a father of scientific management. So we have to select the highlighted one here. Okay, so F.W. Taylor, we have to now select this as our correct option. Okay, F.W. Taylor B. Okay, and after selecting the option, what we have to do, rewrite the sentence. So now what we will do is, we have chosen our correct option. Now we will write as F.W. Taylor was regarded as the father of scientific management. We have to attend each and every question here like this only. Okay, so next we will also go to next. Principle of dash is based on a place for everything and everything is its place dash. So we will again choose the highlighted one. Okay, so here it is order B again. All right, now you have to again rewrite it also. Okay, you have to rewrite all these 5 questions. Third one is, member of organization should receive orders from one superior. Again B. Okay, don't forget to rewrite. Okay, fourth one, scalar chain means the hierarchy of dash from the top level to the lower level for the purpose of communication authority. Okay, Taylor recommended total dash foreman to control the various aspects of production. So here we have to choose 8. Okay, now we have to match the pair. Okay, I have made it very easy for you. See, in group A we have 5 questions and we have here group B also. So what we have to do is match group 1, I mean group A with the group B. Okay, so here to make it more simple for you, I have chosen same color for the same pairs. For example, first one, Henry Fayol. Here we will choose modern management, यानी कि same color same pair, as simple as that. Next, ये principle of unity of direction. Here we will choose one head one plan. Got it? Next, green, principle of management general guidelines. All right. Scientific management theory, F.W. Taylor. Okay. E, functional organization, 8 foreman. Got it? जो मैंने ग्रुप ए में सेम कलर से किया है, यहाँ पे ग्रुप बी में जिसे सेम कलर से किया है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे. Okay, now moving forward, let us start with C. Give one word phrase term for the following sentence. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए एक हमें टर्म देना है, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ उसे पढ़कर. ओके, या फिर फ्रेज भी दे सकते हैं या फिर हमें वर्ड देना है. द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन while completing particular to. So we have to write here motion study. I have written here in with red color and you have to copy it. Okay, next one is the technique of observing and recording the same requirement of an employee to complete a given task. Time study. ओके, आपने चैप्टर पढ़ा है, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर में दी गई है. ओके, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो. नेक्स्ट वन इज स्टडी consist of an organized, systematic and critical assessment of various activities. Work study. इसे हम क्या बोलेंगे, वर्क स्टडी. द प्रिंसिपल विच डील्स विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव.
ठीक है. The principle which is based on a place for everything and everything is its place. Principle of order. ठीक है. Now D, state whether the following statements are true or false. So first one is the principle of management are universal in nature. True. Next one is management principle are applied differently under different situations. True. Okay, next one is only some principles of management are important. False. Next one is fourth one. Okay, Henry Fayol has given different techniques of management. False. F.W. Taylor has proposed 14 principle of management. No. False. है ना. Each member of organization should receive order only from one superior. True. Done. Shall we move? Okay. Now find the odd one. Principle of authority and responsibility. Okay. Motion study. Okay. Principle of division of work. ओके. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. ओके. सो यहाँ पे थोड़ा ऑड तो हमें समझ ही आ गया क्या है. वो क्या है? मोशन स्टडी. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज फटीग स्टडी. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. वर्क स्टडी. मोशन स्टडी. ऑफ कोर्स दिस वन है ना. ओके. नाउ एफ, आंसर इन वन सेंटेंस. अब ये आप लोग आगे खुद से लिखो, मैंने इसलिए बताया नहीं है. देखो, नो 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 नो, डोंट वरी, आप लोग खुद से लिखो, बहुत अच्छी बात है. बट एक रेफरेंस के लिए ये चीज़ भी आप देख सकते हो. मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए मार्क कर रखा है. आई वॉज जस्ट किडिंग. ओके. सो व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन? व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? हमें ये वन सेंटेंस में ही बताना है. ओके. सो हियर इट इज़. आई हैव रिटन इट फॉर यू. दिस वन. Principle of unity of command is a principle of management which state that each employee in the organization should receive orders from only one superior. Okay. This one is our answer. Note it down until I am just having a sip of water. If you want, you can take the screenshot. If you are, with your notebook, with the pen, you can note it down in your notebook as well. Okay, whatever you prefer. Okay. So now next question is answer in one sentence. Second question, what is standardized of tools and equipment? Okay. हम दो करके देख लेते हैं. फर्स्ट हमें देखना है स्टैंडर्डाइजेशन की टूल्स ऑफ एंड इक्विपमेंट वाला. एंड नेक्स्ट क्या देखना, व्हाट इज डिफरेंशियल वेज रेट. ये दोनों हम साथ में देख लेते हैं. ओके. सो सेकेंड वन इज हियर, इफ यू कैन सी. या सो दिस वन इज सेकेंड एज आई हैव रिटन. Standardization of tools and equipment refers to providing standard tools and equipment for production while also maintaining standard working condition and an atmosphere at a workplace. Okay. ये आई होगा. ओके. मेंटेन होगा. कभी कभी थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, करेक्शन उसे करना पड़ता है. ओके. सो यहाँ पे आप खुद से कर लो. यहाँ पे मेंटेनिंग होगा जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है. ऑलराइट. ओके. नेक्स्ट वन इज दिस. ओके. थर्ड वन. ऑलराइट. नाउ fourth one and fifth one, we will go through fourth question. What is subordination of individual interest into organization interest, and what is meaning of principle? We have to deal with these two questions now. Here it is. Okay. According to this principle, the interest of an individual must given less important than the interest of an organization. ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना. And next one is fifth one.
A principle is a basic rule or belief that guide action and decision. Okay, so we are done with F. Now we have to solve G. Question number 1, G. Correct the underlined word and rewrite the following sentence. Okay, so यहाँ पे देखो, dash which is security in job always affects adversely on the efficiency of employees. नहीं, security क्या किसी को इफेक्ट कर सकती है? एम्प्लॉय को क्या इफेक्ट कर सकती है? उसके पास सिक्योरिटी है, आपको कोई एकदम सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो आपको कुछ लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट उससे नहीं होंगे, बल्कि आप क्या अपोजिट रहोगे, उससे खुश रहोगे आप, है ना। तो किसी की जॉब में अगर उसकी जॉब उसको सिक्योर करती है तो क्या वो होगा? इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन वो इफ़ेक्ट हो सकता है जब उसकी जॉब उसको इनसिक्योर करेगी, इनसिक्योर आएगा वहाँ पे, ठीक है। सिक्योरिटी से किसी को भी दिक्कत नहीं होती, एवरीबॉडी इन्जॉयज़ द सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन जब इनसिक्योरिटी, जब उसे पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो वो घबराता है इंसान, तब वो इंसान इफ़ेक्ट होगा। एम्प्लॉय भी एक इंसान है, और यहाँ पे अब इसीलिए इंसान कह रहा है क्योंकि कोई भी इंसान इफ़ेक्ट होगा इनसिक्योरिटी से। नाउ एस्पिड डे कॉर्प्स मीन्स डिवीजन इज स्ट्रेंथ, नो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इसको हम करेंगे कट, लिखेंगे यूनिटी। ओके, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सब ऑर्डिनेट, नो 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 नो, यहाँ पे आना चाहिए सुपीरियर, ठीक है। हमें सब ऑर्डिनेट से तो नहीं मिलते हैं ऑर्डर्स, किसके हमें फॉलो करने पड़ते हैं? सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं ना। Okay, now decentralization means concentration of powers and authorities at a specific position. No, यहाँ पे decentralize नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? centralization. Okay. Now fifth one is management techniques are applied differently under different conditions. तो यहाँ पे techniques नहीं, यहाँ पे हमारी चैप्टर में principles की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे principles. Okay. Okay, so question number 2, explain the following terms and concept. Okay, so first one is motion study. What we have to explain? We have to explain the concept of motion study. Okay, along with motion study we have to explain more things, which is second one, differential piece rate system, हमें ये भी explain करना है, इसके साथ साथ fatigue study भी explain करना, और क्या explain करना है हमें? कौन सा concept? टाइम स्टडी। ओके, तो ये चार चीज़ हमें क्या करनी है? एक्सप्लेन करनी है, जिसके लिए हम आ जाएंगे पेज नंबर 9 एंड 10 पे। ओके, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक से मार्किंग कर रहे हैं, इसलिए जो भी चीज़ टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है हम उससे टेक्स्ट बुक से ही कर लेंगे सॉल्व। ओके, सो हम पहले आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे एंड 11 पे, और हमें चार चीज़ सॉल्व करनी है। सो वी आर ऑन पेज नंबर 10 राइट नाउ। ओके, सो हमें पहले क्या एक्सप्लेन करना था? मोशन स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसे मोशन स्टडी एक्सप्लेन, ये रहा। ओके, जो फर्स्ट वन था उसमें हमें एक्सप्लेन करना था कौन सा कॉन्सेप्ट? मोशन स्टडी। तो उसमें हम एज सिंपल एज दैट, ये जो भी आपको दिख रहा है यू हैव टू जस्ट पुट इट डाउन ओवर देयर। ओके, जो भी येलो कलर का हाईलाइटेड है आपको वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही लिख देना है। ओके, अब उसके बाद मोशन स्टडी के बाद मुझे लगता है नेक्स्ट जो था वो था ये डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। ओके, सो ये सेम चीज़ आपको अगेन ऐसे ही करना है, सेकेंड वाले में लिख देना है। ओके, ओके, नाउ थर्ड वन, हमें दो चीज़ और दी गई थी, ठीक है। टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी दिया गया था, तो आई गेस थर्ड वाला जो था वो फटीग स्टडी था। थर्ड या फोर्थ जो भी है उसमें फटीग स्टडी होगा, आपको उसमें ये पूरे पॉइंट्स लिख देने। ओके, एंड नाउ लास्ट वन विच वॉज स्टडी, टाइम स्टडी। सो हेयर यू हैव टू चूज पर्पल कलर एंड नोट इट डाउन। ओके, आ गई बात समझ? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पेज नंबर 10 एंड 11 पर ही मिली है। ओके, ओके या सो हमने तो चारों एक साथ देख लिए हैं, यहाँ पे बहुत हमारा टाइम सेव हो गया है ना। चलो, नाइस, गुड टू सी दिस। ओके, नाउ वी हैव सम केस स्टडीज, वी हैव टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ओके, सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 क्वेश्चन। यहाँ पे हम बात हो रही है मिस्टर हर्षद की, इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ
utensils. On this basis, okay, so we have to solve here 3 questions. First one is, identify any one principle of management in above case. What is the designation of Miss Nana in this organization? Who is responsible for overall planning of the organization? तो ये तीनों चीज़ हम देख लेंगे. ओके, यहाँ पे आपको मैंने नोट डाउन कर दिया है. यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर. ओके, first, in the above case, the principle of division of work is identified. Okay, the designation of Miss Nana is human resource management. Third, Mr. Harshad, an entrepreneur of eco-friendly utensils, is responsible for the overall planning of the organization. Okay, तीनों हमने सॉल्व कर लिया. ओके, एक और केस स्टडी है यहाँ पे हमें. दिस वन, in Fine Diamond Ltd, 200 employees are working in 3 shifts. In first shift, 60 employees. In second shift, 60 employees and 80 employees. ओके, यहाँ पे भी हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है. आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल इट नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी. सेकेंड, सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक्स विच कैन बी यूज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड LTD. वाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम. तो यहाँ पे भी हम तीनों सॉल्व कर लेंगे. ओके ओके, ये हमारा पूरा आंसर ऐसे लिखना है हमें. Okay, done. Yeah, so we are done with question number 3 as well. Now question number 4. Okay guys, so here we have to solve brief. Answer in brief. First one, explain any 5 principles of management of Henry Fayol. Okay, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 5 and 6 पे. ओके, सो हमें कोई भी 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं किसके, हेनरी फेयल के. और इन्होंने तो हमें ऑलमोस्ट 14 दिए हैं, ऑलमोस्ट क्या 14 दिए हुए हैं प्रिंसिपल्स. उसमें से वी विल चूज़ एनी 5. पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 5 and 6 पर, उसके बाद देखते हैं. This one is page number 5. Okay, so 14 प्रिंसिपल दिया गया हमें फाइल के थ्रू. ओके, इन्होंने ही हमें दिया है, लेकिन हमें लिखने तो सिर्फ 5 थे, है ना. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज सी, पूरे हमें 14 दिए गए हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके डीपली, टीम वर्क तक, ये वाला तक, बट हमें सिर्फ और सिर्फ 5 चूज़ करना है. तो इफ़ यू विल आस्क मी व्हाट आई विल चूज़, तो यहाँ पे मुझे जो ऊपर के पॉइंट सबसे अच्छे लगे, सिंपल लगे, वो कॉन्सेप्ट आई विल कीप राइटिंग. तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लिखूँगी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये पूरा मैं यहाँ तक लिख दूँगी. सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं यहाँ तक लिख दूँगी. अब मैं थर्ड फोर्थ भी लिखूँगी लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज. थर्ड का भी मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ तक. एंड देन फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. एंड लास्टली आई विल चूज़ द 5th पॉइंट विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यहाँ तक. ओके, ये मैंने मेरे लिए 5 पॉइंट चूज़ किए. ओके, बट आपको अगर कोई दूसरे पॉइंट अच्छे लगते हैं, यू कैन चूज़ दैट ऑल्सो. और सेम जैसे हमने इसे लिखा, ठीक है, जैसे ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मुझे ये भी पॉइंट अगर अच्छा लगता है तो मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का सेम लिखूंगी, और ये जितनी भी हमें कॉन्टेक्स्ट में इसके दिया हुआ है वो लिख दूंगी मैं. ओके, सो आप ऐसे करके ये 14 पॉइंट में से कोई भी 5 चूज़ कर सकते हो. ओके, आपके लिए. बट मैंने जो चूज़ किया था आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, I have marked my answer, okay, with yellow highlighter. Okay, so फिर से हम हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं. Okay, now question number 4, second one, describe any 4 techniques of scientific management. Okay, यहाँ पे
हम पे थोड़ा एहसान किया गया है कि 5 पूछा गया था ऊपर, अब नीचे आके उन्होंने हमसे 4 टेक्निक्स पूछी है ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 10 पे। ओके, okay, techniques of scientific management. Here also what we will do, we will select any 4 टेक्निक्स। ओके, अगर आप मेरी बात करो तो जो आप लोगों को मैंने 4 कलर से 4 चीज़ें हाईलाइटेड की है, मैं ये 4 चीज़ लिखूंगी अपने टेक्निक्स में। 4 डिफरेंट टेक्निक्स बतानी है, अब आप कोई भी बता दो। ये जो आपको दिख रहा है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहाँ से जो भी पॉइंट शुरू हो रहे हैं, जो भी पॉइंट, ये लास्ट यहाँ तक है, 6 तक है। ओके, यहाँ तक आप कोई भी 4 सिलेक्ट कर सकते हो और लिख सकते हो। ओके, मैंने ये लिखा। ओके, ABCD, डन। ओके, मैंने लिख दिया टाइम स्टडी को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने लिख दिया मेथड स्टडी उसे एक्सप्लेन कर दिया, मोशन स्टडी लिखा उसे भी एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट में फटीग स्टडी लिखा है उसे भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, if you want you can choose any points which you find easy, जो आपको लगता है मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ वैसे भी पॉइंट्स चूज़ कर सकते हो। मैं एक इन जर्नल जो मोस्ट ऑफ द बच्चे चूज़ करेंगे या फिर जो पॉइंट्स मुझे इजी लगते हैं वो सब मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही यही चूज़ करेंगे, आई एम श्योर, जो मैंने चूज़ किया है, क्योंकि ये एक जर्नल बात है ना, सीक्वेंस के साथ अच्छे से लिखा हुआ है वो।